Alok Sharma is multifaceted. Like, you're popular in the comic industry, you're popular in the writing industry, you're a director, you're an animator yourself. I like to tell stories in any medium. So जो mediums exist करते हैं उनमें या जो mediums आएंगे उनमें as a storyteller, story is my currency. Your first comic कितने साल पहले लॉन्च किया था? My first comic got published when I was 14. Wow. कहानी कहने की जो क्षमता है या एबिलिटी है वो शुरू से थी. वो पता था कि I can narrate stories. एक पेज की कहानी को मैं 3 कर सकता हूँ, मुझे मालूम है कैसे करना है बिना किसी को बोर किए. तो कॉमिक बुक से एनिमेशन में कैसे? क्योंकि एनिमेशन में पैसे थे यार, कॉमिक बुक्स बंद हो गई थी. What was the reason? यार दुनिया भर की चीजें हो रही थी, इंटरनेट आ गया था दुनिया में, वीडियो गेम्स थे. जो मेरी जनरेशन थी वो बड़ी होके कॉमिक्स से ग्रेजुएट कर गई थी. जो नेक्स्ट जनरेशन थी वो पैदा ही वीडियो गेम पे हुई थी. Anybody's stories or maybe a comic book, when the thought comes, it's an IP. No, right? it's not an IP. It's not an IP. So explain about IP in detail, how comic book can be an individual's IP. So one of my ex-bosses used to say कि my dog can have an idea in its hour. प्रॉपर्टी वो है जिसको कि आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो किसी तरीके से. एक आईपी का मतलब ये होता है आईपी नीड्स टू हैव लेग्स. जब वो दौड़े तो वो दौड़ती रहे. नहीं तो हर चीज आईपी है, हर चीज के पीछे वर्स लगा दो वो यूनिवर्स हो जाता है. कॉमिक्स से बड़ा कोई भी आईपी को संभालने वाला मीडियम नहीं है. If you want to cement your IP, the best and the cheapest way to do is either do a document or make a comic book out of it. If I make a comic, books has to be published also, but market में लाना is also a big task. So where can an individual go? Welcome to our podcast and thank you so much for being here. Thanks, yeah. I was waiting for your call to be on this podcast. Oh, fantastic. And good to have you here. And I was thinking कि मैं आलोक को introduce कैसे करूँ, because Alok Sharma is multifaceted. Like, you're popular in the comic industry, you're popular in the writing industry, you're a director yourself, you're an animator yourself. So now आप ही हमको बताओ, audience को बताइए कि who is Alok Sharma and what is Alok famous for? So I'm a storyteller, quintessential a storyteller. And a lot of people don't know this, but I was also a radio presenter. So वो भी एक छोटा सा चंक है मेरी लाइफ का जो होके खत्म हो गया. And I always felt कि I like to tell stories in any medium possible. So जो mediums exist करते हैं उनमें या जो mediums आएंगे उनमें, I think as a storyteller, story is my currency. And that is what I'm here to do. So whether it's films, shows, animation, comics, radio, XR, you name it, I just go and tell my stories. And I always feel कि storytelling is my forte. The mediums can change, the art remains the same. Yeah. Cool. So career path में, like, what are you currently doing? As I said, Alok is very popular when it comes to comic book. So why is that comics? So? I'm doing comics somehow, and I'm very grateful that my name gets associated with a medium that I grew up with. I never grew up watching animation or watching TV. I grew up in a no TV household. Okay. Yeah. So घर पे टीवी नहीं था. 26 साल की एज में मैंने मेरे घर का पहला टीवी खरीदा है. Wow. हाँ, तो 26 साल तक घर में टीवी नहीं था. So फिर शोज वगैरह देखना या कुछ किसी और के घर कभी पे? कभी किसी के यहाँ देख लिया, कभी कुछ चीज़ पड़ोसी के यहाँ देख ली. तो वो होता था ना पहले कि एक पूरा लोग जाते थे और चढ़ाई बिछा के किसी के घर में बैठ के टीवी देखते थे. वो घर जिसका घर होगा वो आदमी दुखी होगा क्योंकि उसका आधा संडे खराब कर दिया आप लोगों ने. बट आप बेशर्म हो क्योंकि आपके घर में टीवी नहीं है. तो मैं वो दूसरे साइड वाला बंदा हूँ. मेरे घर पे टीवी नहीं था, बट हम जाते थे लोगों के यहाँ टीवी वगैरह देखते थे, दोस्तों के यहाँ टीवी देखते थे. तो टीवी का एक्सपोजर ऐसा नहीं कि मैंने टीवी ही नहीं देखा था, बट रीडिंग वॉज समथिंग दैट केम नेचुरली टू मी बिकॉज माई मदर वॉज अ वोराशियस रीडर. Okay. एंड ऑल्सो शी वॉज अ कॉमिक बुक फैन. हाँ, सो आई ग्रू अप अमिट्स कॉमिक बुक्स. Okay. सो वो क्रेडिट तो मॉम को जाता है कि घर पे इंद्रजाल कॉमिक्स थी जब मैं पैदा हुआ, या चाचा चौधरी थी जब मैं बड़ा हो रहा था. तो किताबें थी घर पे. एंड दैट इज़ वन मीडियम आई एम वेरी वेरी पैशनेट अबाउट. लाइक आपकी लाइफ से बाकी सारी चीज़ें हटा दो, कॉमिक्स आप हटाना चाहोगे तो भी बहुत मुश्किल है. हाँ. Okay. So your first comic कितने साल पहले फर्स्ट कॉमिक लॉन्च किया था? मेरी फर्स्ट कॉमिक, ये बहुत अलग तरीके से इसका जवाब देना पड़ेगा. माई फर्स्ट कॉमिक गॉट पब्लिश्ड व्हेन आई वाज 14. When you were 14? When I was 14. Wow. In a kids magazine. बालहंस करके एक मैगजीन आती थी फ्रॉम राजस्थान. सो माई फर्स्ट कॉमिक गॉट पब्लिश्ड देयर. उसके अलावा चंपक वगैरह में छपने लगी थी किताबें. कॉमिक्स मेरी कॉमिक स्ट्रिप्स थी, कॉमिक बुक नहीं थी, बट मेरी कॉमिक स्ट्रिप्स आई थिंक वर गेटिंग पब्लिश्ड सिंस आई वाज 14. Okay. So explain
to our audience comic strips, comic books, like comics में क्या क्या होता है? Because as at the age of 14 you were able to create your own comic book. Yeah. Okay, maybe किसी ने सिखाया होगा या कुछ तो आइडिया मिला होगा. माई डैड या Dad. तो बहुत फनी उसका स्टोरी ये है कि व्हेन आई वाज 4 हम रायपुर में रहते थे, तब तक हम उड़ीसा से शिफ्ट हो गए थे। तो दूरदर्शन पे एक फिल्म आई थी, कब क्यों और कहाँ। Correct. बहुत खतरनाक फिल्म थी, एंड आई वाज लाइक 4 और 5। संडे को फिल्में आती थी दूरदर्शन में। तो उसमें ना प्राण का एक कैरेक्टर होता है जो मर जाता है और मर के जिंदा होके वो भूत बन के डराता है सबको। Correct. तो उसकी आईज ऐसे पॉप अप होती हैं और वो सबको डराता है। तो मैंने वो देख लिया था और मतलब हालत खराब हो गई थी देख के, डर गया था मैं। और प्राण कोई बोल दे तो मतलब मैं मर जाऊँ डर के मारे, ऐसा हाल हो गया था। सो एंड बाय देन आई वाज ऑलरेडी इन लव विद चाचा चौधरी। ठीक है, जितना पढ़ पाता था, जितना मेरे पेरेंट्स मुझे पढ़ के सुना देते थे। सो व्हेन माय डैड रियलाइज कि अरे ये तो मतलब प्राण नाम से डरता है, तो माय डैड टोल्ड मी कि द पर्सन हु ड्रॉज चाचा चौधरी, हिज नेम इज आल्सो प्राण। Pran, yeah. हाँ, Of course, yeah. सो दैट काइंड ऑफ सॉफ्टन मी अप। प्राण के नाम से मुझे वहाँ से डर लगना धीरे धीरे कम हुआ। कम हुआ. तो मुझे ये पता था कि देर आर पीपल हु ड्रॉ दीज बुक्स, एंड समवेयर डाउन द लाइन आई ऑल्सो न्यू हु ड्रॉ द कॉमिक्स ऑल्सो गेट पेड फॉर ड्रॉइंग कॉमिक्स। Okay. कॉमिक स्ट्रिप्स बेसिकली होती है combination of panels. It Mhm. can be 2 panels. One panel is a pocket cartoon. Okay. That is R.K. Lakshman. Yeah. That is most of the political cartoons that we see or social cartoons we see. Comic strip is more panels. So 2 या 3 पैनल में होगा। One you set up the joke, then comes the twist, then comes the punchline. So only 3 boxes. तीन Panel boxes means में आपको in हाँ, एक simple कहानी language. 3 Yeah. panels में, right? So that is उसमें वो- basically, sorry, हाँ। newspaper के last Newspaper में last में 3 होता है, या हाँ, 4 का जो हाँ, एक हाँ, होता था, हाँ, जो I used to 3 या 4 always होता है। read that. तो Dennis the Menace is a हाँ. pocket cartoon. Yeah. Then you see Phantom as a strip. Then you see Beetle Belly as a strip. There are a lot of them as strips. And उस जमाने में तो बहुत होते थे जब मैं बड़ा हो रहा था। तो I started with strips, 3 पैनल की, 2 पैनल की। और कोई ऐसा बहुत महान चीज़ें नहीं थी वो, ठीक है। वो चुटकुले थे, जोक्स थे, हाँ. चालू जोक्स थे, जिनको कि थोड़ा सा रीवर्क करके आप बोलते हो कि ये जोक मैंने 10 बार पढ़ लिया है, हाँ. तो इसमें क्या नया कर सकते हैं। एंड देन यू चेंज द पंच लाइन में भी, चेंज द ओपनिंग में भी, चेंज द सेटअप में भी। तो वो चीज़ मुझे थोड़ा सा खलती थी यार। मुझे जोक्स पढ़ने में बहुत मजा आता था, बट व्हेन यू सी द सेम सेटअप, सेम पे बैक टाइम एंड अगेन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके फंडे क्लियर हो जाते हैं कि जोक का स्ट्रक्चर क्या है विदाउट इवन रियलाइजिंग। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्लियर हो गया है। लेकिन स्ट्रक्चर क्लियर होने के बाद आपको समझ में आ रहा है सब सेम जोक्स की वेरिएशन में काम कर रहे हैं। तो यू टेक द सेम स्टफ एंड यू रिमिक्स इट, राइट? दैट्स व्हाट स्टोरी टेलिंग इज। You take pre-existing stuff, you remix it with your lived experience, make something that is TV में हम बोलते हैं give me the same but different. But different. हाँ, so give me the same but different. मैं आपको वही जोक दूंगा लेकिन मैं जरा सा उसको घुमा दूंगा। घुमा के दूंगा। Sadly और luckily the first cartoon I made got published here. पहला ही रिजेक्शन नहीं आया, तो वो ऐसा लगा कि अरे मतलब फोड़ दिया है। तो मतलब पहला ही कार्टून, माय फादर यूज्ड टू टेल मी यार रिजेक्शंस आते हैं, संपादक के खेद सहित करके लिखा हुआ आता है एडिटर का, है ना। तो नहीं आया यार, पहला छप गया। पहला था, मेरा पहला कार्टून था, उसमें रावण है और उसके सामने एक लड़की माइक लेके खड़ी है, बोलती है अंकल आप प्लीज कोरस गा दोगे। तो So this was your original दिस वाज माय ओरिजिनल थॉट। हाँ, Wow. कि कोरस मतलब 10 हाँ। तो आई हैड मल्टीपल जोक्स ऑन रावण। देन आई वाज लाइक कि ये तो छप रहे हैं, ये स्ट्रिप्स भी छप रहे हैं, पॉकेट कार्टून्स भी छप रहे हैं, सो लेट्स पुश द बाउंड्री, लेट्स मेक लाइक 1 पेजर। तो 1 पेजर बनाने में बैंड बजी, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी चाहिए, बैकग्राउंड्स इतने सारे बार बार ड्रॉ करने पड़ेंगे, कंप्यूटर तो था नहीं, हाथ से कर रहे हो आप सब चीज़ें। कुछ गलत हो गया तो उसको वाइटनर लगा लगा के आप ठीक कर रहे हो। कैलीग्राफी खुद कर रहे हो, बिकॉज कैलीग्राफी हाथ से करनी है, तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, फिर वाइटनर लग रहा है, तो वो रिजेक्ट होने शुरू हो गए। वो बहुत रिजेक्ट हुए मेरे। Okay. वो दबा के रिजेक्ट हुए, कुछ छवि नहीं रहा था उसमें से। तो एकदम यहाँ से ऐसे नीचे आ गया। जब मतलब यार ये तो मैं करियर सोच रहा था, ये तो कुछ हो ही नहीं रहा इस चीज़ का। तो फिर फिगर आउट किया कि यार जेरोक्स निकाल सकते हैं, जेरोक्स को काट काट के बैकग्राउंड बना सकते हैं, क्योंकि फोटोशॉप था ही नहीं, आता ही नहीं है। मतलब था और रहा होगा, बट अपना एक्सेस नहीं था। तो जेरोक्स वाले के पास खड़े होकर बैकग्राउंड्स के 10 जेरोक्स निकाले, फिर उस पर काट के चिपकाया, फिर कैलीग्राफी अलग से कागज़ पे की, फिर उसको चिपकाया, उसके ऊपर ऐसा सब कर करा के कुछ एक फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर बना। वो छप गया। वो जब छप गया तो समझ में आया कि ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस को फॉलो करना शुरू किया। ये प्रोसेस पे काम चल निकला, अच्छी खासी चीज़ें छपने उपने लग गई। तो ये हुआ कि अब कॉमिक स्ट्रिप से आई हैड मूव्ड ऑन टू लाइक प्रॉपर कॉमिक पेजेस like 1 pager story. 1 पेजर से 3 पेज हुआ वो। अच्छा, ठीक है, क्योंकि अब मुझे पता 4 जोक्स मार सकते हो आप इसके अंदर पे, और एक कहानी भी कह सकते हो। तो और कहानी कहने की जो क्षमता है या एबिलिटी है वो थी, शुरू से थी। वो पता था कि आई कैन नरेट स्टोरीज। ठीक है, तो वो मालूम है कि ये 1 पेज की कहानी को मैं 3 कर सकता हूँ, मुझे मालूम है कैसे करना है बिना किसी को बोर किए हुए। बिकॉज एज अ रीडर, एज एन ऑडियंस मैं बहुत जल्दी बोर होता हूँ, मेरा ADHD फटाक से टिक करता है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि आई एम लाइक एन
एन 8-year-old बॉय, ओके, तो अगर मेरा टेंशन मैं पकड़ पा रहा हूँ ना खुद लिखते समय, तो मेरी ऑडियंस को मैं पकड़ लूंगा। पकड़ लेगा हम। हाँ, उसको मैं हिलने नहीं दूंगा मेरी जगह से। थैंकफुली इट हैज़ वर्कड, दैट ADHD हैज़ वर्कड इन माय फेवर। तो टिल आई वाज 20 मेरे कुछ 1000 कार्टून्स छप चुके थे। 1000। हाँ, पूरे टाइम तो वही कर रहा था। माय फादर वाज रियली वरीड अबाउट मी कि यार इसका क्या होगा पता नहीं, ये तो गड़बड़ हो गया मामला, ये तो वहाँ जा रहा है जहाँ इसको जाना मुझे नहीं जाने देना था। बट हाँ, कमिंग बैक टू कॉमिक स्ट्रिप, देन अ पेज लॉन्ग कॉमिक टू 3 पेज। अब महत्वाकांक्षा बढ़ गई थी ना, अब कॉमिक्स करना था, फुल फ्लेजेड फुल कॉमिक्स, लाइक योर ओन ब्रांड। 32 पेजेस, 64 पेजेस, उस जमाने में यही छपता था इंडिया में। फिर इंटरनेट का मुझे ये चस्का लगा, तो इंटरनेट के थ्रू मुझे कुछ बाहर के फ्रीलांस मिले, US वगैरह के, पैसे आ रहे थे, डॉलर्स में पैसे आए यार, और मुझे लगा कि अब तो बस इसके बाद मैं एनिमेशन में घुसूंगा, तो कॉमिक बुक से एनिमेशन में कैसे क्योंकि एनिमेशन में पैसे थे यार। कॉमिक हाँ। बुक्स बंद हो गई थी 2000 में, ईयर 2000, हाफ द कॉमिक बुक कंपनीज वर शट डाउन। व्हाट वाज द रीजन? यार दुनिया भर की चीज़ें हो रही थी, इंटरनेट आ गया था दुनिया में, वीडियो गेम्स थे, जो मेरी जनरेशन थी, जो बड़ी होके कॉमिक से ग्रेजुएट कर रही थी, करेक्ट। ठीक है, कॉलेजेस थे, मतलब सब मेरे जैसे लफंडर तो थे नहीं, लोगों को IAS वाईएएस बनना है, हाँ, तो राइट, उन लोग सब उनको ने बेचारों को पढ़ना है, अब त्याग वो दिया, नागराज हाँ। थोड़ी उनके काम आने वाला है, तो सबने त्याग दिया था मेरी जनरेशन ने। मेरी जनरेशन की जो नेक्स्ट जनरेशन थी, हाँ, वो पैदा ही वीडियो गेम पे हुई थी, करेक्ट। तो उनको तो कॉमिक्स पे लाना वो वुड हैव बीन मोर डिफिकल्ट, ले जाना तो ईजी था। तो मोस्ट ऑफ द पब्लिकेशंस वर शट डाउन ओके, इन 2000। तो आई ऑलरेडी न्यू कि ये तो इंडस्ट्री, तो जिसमें नाम बनाना था ना, वो इंडस्ट्री तो खत्म हो गई। खत्म। हाँ, तो वो एक भय व्याप्त हो गया था अंदर कि यार अभी तो कुछ नया चीज़ ढूंढना पड़ेगा। तो नई चीज़ थी एनिमेशन, एनिमेशन नया नया आ रहा नया था। था, मैं किसी एनिमेशन इंस्टीट्यूट का पार्ट रहा ही नहीं, राइट। कभी नहीं रहा। हाँ, ये एक दूसरा स्कैम है एक्चुअली, कि मैंने पढ़ाई ही नहीं है एनिमेशन की। मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ यार, उससे ज़्यादा कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है मेरी। नहीं बट इफ़ यू वांट टू लर्न द प्रोसेस, लर्न फ्रॉम पीपल हु आर एक्चुअली डूइंग इट। डूइंग इट, या तो मुझे वो लगता है कि कोर्सेज अपनी जगह है। आई एम नॉट डिस्कार्डिंग द आइडिया ऑफ एजुकेशन और कोर्सेज, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। दे ऑल्सो आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग अ नेटवर्क ऑफ पीपल। एलुमनाइज का अपना एक नेटवर्क होता है जो बहुत हेल्पफुल रहता है लोगों के लिए। तो वो सब चीज़ें हैं जो मैं मिस करता हूँ, बिकॉज आई डोंट कम फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट। बट meeting professionals and understanding their process also helps you in a lot of things that a institute will never tell you. ऑफ कोर्स। बिकॉज हाँ, ट्रायल एंड एरर से बहुत सारी चीज़ें लोग सीखते हैं। एक छोटी सी चीज़ है कि कॉमिक्स में आप जब पैनल के लिए लाइन खींचते हो ना, पेजेस में पैनल के लिए, तो वो क्या होता है, स्केल को सीधा रख के खींचोगे ना तो स्पंज हो जाता है लाइन। ओके, तो प्रोफेशनल टोल्ड मी स्केल को उल्टा रख, क्योंकि वो एज रहता है, हाँ, तो समझ नहीं होगा। ये मुझे कोई इंस्टीट्यूट नहीं सिखाएगा, correct. ये वो बंदा सिखाएगा जिसने समझ जिसने किया है समझ 10 करके पेज, ले उसके लिया। बाद उसने अपना एक प्रोसेस फिगर आउट किया है, एंड दैट प्रोसेस इज गोइंग टू हेल्प मी आउट फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। उसके लिए मुझे वो ट्रायल एंड एरर नहीं करना पड़ेगा, मुझे उसको मेरा प्रोसेस को इवॉल्व नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज किसी ने ऑलरेडी वो मिस्टेक करके सीख लिया है। करेक्ट। तो बीइंग एन अप्रेंटिस टू समवन or meeting someone and telling them what are the problems that you're facing as a professional is always going to help you out in a longer run. So I always feel ki knowing your heroes is very important. Meeting them is also very important. Another thing that I've done unknowingly, but later on I read in a book, and I feel as a process that also helps, is making your own family tree. फैमिली ट्री ड्राइंग। वंश वृक्ष, हाँ, अपना वंश वृक्ष होना चाहिए कि say if I like your work, so just knowing your work is not enough for me. I'll come to you, I'll say who all you like, and you will give me those names. ओके, So those are your fathers. Then उनके कौन fathers है, उनके कौन fathers है, उसके कौन से branches हैं। जो क्यूबर्ट का एक स्टोरी टेलिंग स्टाइल है, विल आइजन का एक स्टोरी टेलिंग स्टाइल है, मुझे जेफ स्मिथ पसंद है। मैं जेफ स्मिथ का बोन पढ़ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार ये तो बहुत एपिक लग रहा है। एंड देन जेफ स्मिथ सेज कि इतना विल आइजनर है इसके अंदर, इतना कॉम्पोजिशन जो कुबर्ट का है। हाँ, जबकि जो कुबर्ट और विल आइजनर रियलिस्टिक हैं, जेफ स्मिथ इज एन एनिमेटर हु डिड अ कार्टूनी बुक कॉल्ड बोन। Knowing that वो वही किया है, तो I also realized कि even while doing cartoons, I can look at a lot of realistic stuff and imbibe those, ideas and compositions in my cartoony work. तो making that family tree is Is very 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 important. Music कर रहे हो, animation कर रहे हो, comics कर रहे हो, लिख रहे हो, जो भी चीज़ कर रहे हो, करेक्ट। कि मुझे एज अ राइटर KP सक्सेना का काम बहुत पसंद है। आई ग्रो अप रीडिंग हिज वर्क, अमेजिंग राइटिंग। देन मैंने कहीं उनका एक इंटरव्यू पढ़ा, उन्होंने बोला मुझे PG वुडहाउस बहुत पसंद है। तब तक मुझे पता ही नहीं था PG वुडहाउस है कौन। तो मैंने PG वुडहाउस ढूंढा गांव में और पढ़ा, एंड आई रियलाइज यार क्या क्या चीज़ है ये। फिर मैं पूरा PG वुडहाउस पढ़ा। तो अगर मुझे KP सक्सेना पसंद है, तो मुझे ये भी जानना है KP सक्सेना को कौन पसंद है, कौन पसंद और क्यों तो उसके पसंद है। हाँ, पूरे तो फिर वो पूरा एक वंशवृक्ष बनना शुरू होता है। तो anything, even if it's not your profession, but anything that you like, try to find out what those people have liked, yeah. and what has created this one style that they have, inculcated and made their own. So that I feel is very important, and that I've been doing throughout my career. Initially unknowingly, later on that kind of became a process. And after reading it in this beautiful book called Steal Like an Artist,
ऑस्टिन क्लियन की बुक है, आई थिंक एवरी वन शुड रीड दैट बुक। छोटी सी किताब है, मतलब लेकिन उसको पढ़ना आराम से चाहिए। ऐसे पन्ने पढ़ाओगे तो आधे घंटे की किताब है वो। ठीक है, so you recommend that book स्टील to लाइक एन आर्टिस्ट हाँ इज अ बुक दैट आई रिकमेंड टू एवरीवन, बिकॉज मुझे ये किताब मिली जब मैं 35 का था, और मुझे रियलाइज हुआ कि इस किताब का 70% चीज़ मैंने ट्रायल एंड एरर से ऑलरेडी किया हुआ है, 30% वो है जो मैं करना चाहूँगा। लेकिन वो 70% करने में ना मुझे टाइम लग गया। अगर वो शुरू में ही कोई समझ जाता है कि इसको कैसे करना है, तो यू कैन बिकम अ मच बेटर क्रिएटर। सो दैट इज वन बुक दैट आई हाईली रिकमेंड। देयर इज अनदर बुक दैट, मतलब आई नो यू नेवर आस्क फॉर इट, बट आई एम, no but yeah हाँ, द वॉर ऑफ आर्ट। okay बिकॉज हम सबको थोड़ा सा इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है, हर क्रिएटर को, मुझे तो बहुत ज़्यादा है। तो दैट बुक हेल्प्स अ लॉट इन फाइटिंग दैट, एंड ऑल्सो इट सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग। तो हम लोग उन चीज़ों को बिना सोचे समझे कर रहे होते हैं, बट अगर उसमें एक स्ट्रक्चर आ जाता है ना, और बहुत सारी चीज़ें जो हमको रोकती हैं, जैसे हमारा होता है, आई हैव सीन दैट विद अ लॉट ऑफ पीपल, कि मैं भी हूँ उनमें से, कि हम एक बहुत सुंदर स्केच बुक खरीदते हैं लाइफ में, एंड वी से कि जब मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा हो जाएगा ना, तो आई विल स्टार्ट स्केचिंग इन दिस वन, एंड आई मेक दिस स्केच बुक माई अल्टीमेट स्केच बुक, लाइक द स्केच बुक ऑफ XYZ आर्टिस्ट हाँ दैट आई एडमायर। और वो स्केच बुक पूरी रह जाती है बहुत लंबे टाइम तक। मेरी कुछ बुक्स हैं, स्केच बुक्स हैं, जो 15-15 साल से ब्लैंक पड़ी हैं। अब मैंने सबको ख़राब करना शुरू किया जानबूझ के। हाँ तो हर क्रिएटिव प्रोसेस में उस चीज़ से बचना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यू वांट टू डू द अल्टीमेट थिंग एवरी टाइम यू डू, एंड वो परफेक्शन के चक्कर में ना कंप्लीशन नहीं होता है किसी चीज़ का। तो इज़ बेटर टू बी प्रोलिफिक देन परफेक्ट, कि ज़्यादा काम करो ना, तो उसमें से 2 चीज़ अच्छी हो जाएगी। 10 मारोगे ना, 2 अच्छी लगती है, करेक्ट ठीक है, लेकिन 10 मारो, वो एक परफेक्ट बनाने के चक्कर में 9 चीज़ें नहीं करना इज़ वेरी रॉन्ग। तो मुझे जब कॉमिक्स करना था तो मैंने कॉमिक्स किया, मुझे जब रेडियो करना था रेडियो किया, मुझे एनिमेशन करना था, टीवी करना था, प्रोमोस करना था, जो करना था किया। और मेरा ये नहीं था कि मुझे इस चीज़ में एकदम परफेक्ट हो जाना है। वो धीरे धीरे करते करते एक प्रोसेस आ जाती है, आप परफेक्ट नहीं भी होते हो तो आप गुड इनफ हो जाते हो, करेक्ट ठीक है। गुड इनफ होना भी बुरा नहीं है, बिकॉज आधी इंडस्ट्री गुड इनफ लोगों से नहीं है, राइट। आधी इंडस्ट्री इनफ लोगों से भरी हुई है, ओके हर इंडस्ट्री, कि वो आते हैं, वो उतना ही करते हैं जितना इनफ है, और चले जाते हैं। तो अगर आप गुड इनफ भी हो ना, तो आप उनसे एक Level. एज और आपके पास है ऊपर, फिर उसमें अगर आप अपने साथ और एजेस जोड़ते जाते हो, तो दैट काइंड ऑफ मेक यू समवन जिसको की रिस्पेक्ट बाकी लोगों से थोड़ी ज्यादा रहेगी। वो होता है, कहीं ना कहीं घूम के आ जाती है वो कहानी। So all your stories, generally, not your story, Yeah. anybody's stories, or हाँ. maybe a comic book, when the thought comes, it's an IP. नहीं, right? इट्स नॉट एन It's not an IP. मेरा यही सबसे ये है। So explain about IP in detail, and if somebody wants to get their career into comic books, so can you explain how comic book can be an individual's IP? फर्स्ट ऑफ ऑल, अग्री टू डिसअग्री दैट एवरी आइडिया इज एन IP, Okay. एवरी आइडिया इज नॉट एन IP। Mm-hmm. प्रॉपर्टी वो है जिसको कि आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो किसी तरीके से, मीडियम्स में, उससे कुछ निकल के आ सकता है, और उसकी एक लाइफ है, शेल्फ लाइफ है। Okay. एक आइडिया मेरे दिमाग में आया, तो प्रॉब्लम ये है कि वन ऑफ माई एक्स बॉसेस यूज्ड टू से कि माई डॉग कैन हैव एन आइडिया इन इट्स आवर। वो IP नहीं है। नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता है, ये मेरी कहानी है की जगह हम उसको बोलते हैं ये मेरी IP है। कहानी और IP 2 अलग अलग चीज़ें हैं। एक कहानी जो कि मुकम्मल है, अपनी जगह पे है, वो अपने आप में एक कहानी है, वो वहाँ के वहाँ ख़त्म हो जाती है। वो एक लिमिटेड IP है। मेरे हिसाब से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो है जिसको कि लेके मैं अलग अलग चीज़ों में एक्सप्लॉइट करता रहूँ। मिकी माउस इज़ एन IP, स्पाइडरमैन इज़ एन IP, बट डू यू थिंक प्रेमचंद पूस की रात इज़ एन IP? Okay. Because it's over. सो right? इट्स वन स्टोरी। उसको लेके क्या करोगे, उसका स्पिन ऑफ नहीं बन सकता। Hmm. उसकी एक फिल्म बनेगी, उसकी वही फिल्म 10 बार बना सकते हो आप। Correct. वो, और एक तो फिल्म ही नहीं बनेगी, वो शॉर्ट फिल्म है ना। बड़े भाई साहब एक प्रेमचंद की कहानी है, मेरी बहुत फेवरेट कहानी है, मगर वो क्या वो IP वो नहीं है। KP सक्सेना हुज माई मोस्ट फेवरेट राइटर। KP सक्सेना का एक कैरेक्टर है चचा छक्कर, दैट्स एन IP, क्योंकि उसकी सीरीज ऑफ स्टोरीज भी हैं। Mm-hmm. उसको मैं बहुत सारे मीडियम्स में एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ। लेकिन वहीं KP सक्सेना का जो 90% वर्क है, क्या वो IP है? मुझे नहीं लगता वो IP है, क्योंकि वो जहाँ लिखा गया है वो उसी जगह को बिलोंग करता है। Correct. उससे बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं क्रिएट कर सकता। एक IP का मतलब ये होता है, IP नीड्स टू हैव लेग्स, इट नीड्स टू रन, Okay. इट ऑल्सो नीड्स टू हैव स्टीम। जब वो दौड़े तो वो दौड़ती रहे, नहीं तो हर चीज़ IP है, हर चीज़ के पीछे वर्स लगा तो वो यूनिवर्स हो जाता है, राइट। वो एक तरीका है देखने का। यू कैन से स्कॉर्पियन स्पीक्स वर्स, Worse. एंड यू कैन से उसका यूनिवर्स में मैं 6 तरीके के अलग अलग पॉडकास्ट करूंगा, ठीक है, मतलब इफ इट वर्क्स फॉर यू इट वर्क्स फॉर यू, Works, yeah. बट इट डजंट वर्क फॉर मी। But in as a actual, creator. it is not. Yeah. In actual, it's yeah. not here. We have Indusverse, ठीक है, that is our brand, because we knew we are going to create a universe and we mulled over it for years before we called it Indusverse. Okay. वो मार्वल वर्स होने के बाद हर चीज़ के पीछे वर्स लगा देने का एक हमारे यहाँ भारतवर्ष में भारतवर्ष. हाँ, भारतवर्ष में एक ये चला हुआ है, बट ऐसा है नहीं यार। तो मेरे हिसाब से
आईपी वो है जिसके लेग्स हैं, जिसमें स्टीम है, जो कि आपको पता है कि ये सिर्फ एक स्टोरी या एक आइडिया नहीं है, ये बहुत आगे तक जा सकता है। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि हर आइडिया आईपी नहीं है, इनफैक्ट हर आइडिया कॉन्सेप्ट भी नहीं है, बिकॉज यू कैन नॉट कॉपी राइट एन आइडिया। ओके, आइडिया कैन हैव, आइडिया इज इनटेंजिबल ना, वो तो यहाँ है, किसी को भी हाँ, आ सकता वो है। तो किसी को भी आ सकता है। उस आइडिया को एक टेंजिबल फॉर्म देना पड़ेगा। क्या वो डॉक्यूमेंट है, क्या वो एक ड्राइंग है, क्या वो एक सीरीज ऑफ ड्राइंग्स है, फिर आप उसको कॉपीराइट करते हो ना। आप कॉपीराइट में जाओ, बोलो मेरे को एक आइडिया आया आज सुबह, That is वो not, थोड़ी कॉपीराइट करेगा उस चीज़ को, उसको कहीं डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना correct. पड़ेगा, एक टेंजिबल format में बनाना लाना पड़ेगा, पड़ेगा। फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। अनलेस एंड अनटिल इट हैज़ अ टेंजिबल फॉर्म, इट्स यूजलेस। मेरे अपने पास 10,000 आइडियाज, आपके अपने पास 10,000 आइडियाज हैं, वो आइडियाज हैं। जब तक आपने उसको टेंजिबल फॉर्म नहीं दिया, उस टेंजिबल फॉर्म के बाद आएगा फॉर्मेट, उस फॉर्मेट में नहीं है, जब आप कॉपीराइट कराने जाओगे इस चीज़ को, तो पूछेगा क्या है, दिस इज अ प्रोडक्ट, स्टोरी, स्टोरी में स्क्रीन प्ले है, स्क्रिप्ट है, डायलॉग ड्राफ्ट है, या सिर्फ लॉगलाइन है, क्या है वो। तो फॉर्मेट आएगा, फिर उस फॉर्मेट के हिसाब से आप उसको बिल्ड करोगे, फिर उसके साथ आप उसमें 10 डॉक्यूमेंट्स और ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके वो कॉपीराइट होगा। Correct. एनीथिंग दैट कैन नॉट बी कॉपीराइटेड इज ऑफ नो यूज। नो यूज। हाँ, वो तो मैं और आप चलते चलते 4 जोक्स क्रैक कर लेंगे, तो वो थोड़ी आईपी बन जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम आईपी के साथ ये है कि वी थिंक कि एवरी स्टोरी दैट वी हैव इन आवर हेड्स इज एन आईपी। कि अरे मैं मेरे मतलब हम राइटर्स के साथ तो बहुत होता है कि वी गेट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल हु गॉट लाइक लॉट ऑफ मनी और अ लॉट ऑफ टाइम व्हाटएवर, एंड दे विल लाइक अरे मैंने मेरे बच्चे को सुनाई ये कहानी और उसको तो बहुत पसंद आ रही है, तो सब बच्चों को बहुत पसंद आएगी। नहीं, सब बच्चों को बहुत पसंद नहीं आएगी यार, तुम्हारा बच्चा है वो तुम, उसके लिए तुम हीरो हो, तुम जो सुनाओगे सब सही है। हाँ, मेरे बेटे को लगता है मैं किशोर कुमार के जैसे गाता हूँ, तो क्या मैं किशोर कुमार के जैसे गाता हूँ, क्या मैं प्लेबैक करने चले जाऊँ? नहीं ना, उतना रियलिस्टिक होना चाहिए आदमी को। तो ये भी एक चक्कर है आइडियाज और आईपीज के साथ में, विच दैट वी फेस अ लॉट। बट इन कॉमिक्स एनीथिंग दैट यू डू इज एन आईपी। okay. If it's not an IP, it cannot work. It needs to have an idea. It needs to have a proper format. It is tangible, and it can be exploited in any medium. A comic book you take, आप उससे गेम बना सकते हो, आप उससे फिल्म बना सकते हो, आप उससे एनिमेशन बना सकते हो, आप उसको AR में ले जा सकते हो, आप उसको VR में ले जा सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, उससे रील बना सकते हो यार। और दूसरी चीज़ है कि कॉमिक्स ने ओरिजिनल होना ही पड़ेगा। You can't take यू somebody कांट, else's हाँ, ऐसे कुछ भी comic. उठा के नहीं कर सकता मैं कि स्पाइडरमैन को लिया और उसको मिकी माउस के साथ मिक्स करके कुछ रैंडम चीज़ बना दी, ये नहीं कर सकता मैं मेरे हिसाब से। और ये मतलब इट माइट बी कंट्रोवर्शियल टू से, बट आई ऑलवेज फील कि कॉमिक्स से बड़ा कोई भी आईपी ये नहीं है, आईपी को संभालने वाला मीडियम नहीं है। इफ यू वांट टू सीमेंट योर आईपी, द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे टू डू इज ईदर डू अ डॉक्यूमेंट और मेक अ कॉमिक बुक आउट ऑफ इट। कॉमिक बुक बना देने से अच्छी चीज़ ये हो जाएगी कि आपकी पूरी चीज़ एक पुख्ता तरीके से, एक स्टेबल तरीके से जनता के सामने आ जाती है। दूसरी एक और चीज़ हो जाती है, आपको समझ में आ जाता है कि इसके लेग्स हैं या नहीं है, इसमें स्टीम है या नहीं है। Correct. राइट, आपने पूरा शो बना लिया, 13 एपिसोड, उसको स्टीम नहीं है ना, तो फिर कोई फायदा यूट्यूब में नहीं। डालोगे आप। But tell me one thing, if I make a comic हाँ, and I know that it can be an IP, no as in हाँ, scope you है, believe that's why but you'll do a as an comic. individual, हाँ, हाँ, I don't, but then books has to be published also. So Yeah. where can an individual go कि मैंने तो बना ली, चलो प्रिंट भी कर लिया, but publish करना, मार्केट में लाना is also a big task. it has never been easier than now, because एक टाइम था जब you have to, if you're doing a comic, you have to go to a publisher, go through the entire editing process, to you need to understand कि उस publisher का पब्लिशिंग आइडियोलॉजी क्या है, उसके हिसाब से होगा। यू कैन नॉट टेक नागराज टू अमर चित्रकथा एंड यू कैन नॉट टेक अ चाचा चौधरी टू राज कॉमिक्स, राइट। सबका अपना 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 एक स्पेस है। Correct. तो वो समझना ज़रूरी है, आपको आपका टारगेट ऑडियंस समझना ज़रूरी है। वो सारी चीज़ें समझ के आप कुछ क्रिएट करते हो, फिर आप क्रिएट करके खुद ही पैसे चला लेते हो, क्योंकि या तो आप आर्टिस्ट हो या आप राइटर हो या आप दोनों हो, ऐसा भी हो सकता है। बट अगर आपने पैसे नहीं चलाए तो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो आपने डाला है उसमें, कि आपने अपना XYZ मंथ्स उसमें डाला है, आपने इतना टाइम डाला है, उस टाइम में आप और कुछ करते तो उस अपॉर्चुनिटी का एक कॉस्ट होता, तो वो कॉस्ट तो एडेड है ना। Correct. You are investing money, you are investing time, and then you are going and trying to figure out कि कौन सा publisher इस पे सही बैठेगा। And in India, like the US in the 30s and 60s, copyright, patent, IP rights सब perpetuity में publisher के पास रहता था। Okay. The publisher will pay you whatever, and then they'll own the entire thing. And it actually made sense publishers के लिए भी. A lot of artists will hate me for saying this, but the publisher was taking his neck out. He's going to publish like 20 books, उसमें से 4 चिपकेगी, 16 नहीं चलेगी, तो वो रिस्क ले रहा है, राइट। 25% का स्ट्राइक रेट है, 75 का लॉस है उसको। तो उसको अपना राइट्स को संभालना भी ज़रूरी है, उसको ये भी देखना है कि इसमें से कौन सी चीज़ें एक्सप्लॉइट होकर मेरा फ्यूचर सिक्योर रहेगा। हैविंग सेड दैट, दे मेड मिंटेड मोर मनी एज कम्पेयर टू द आर्टिस्ट और creators, yeah. बट एक उसका एक बैलेंस भी होना चाहिए मेरे हिसाब से, जो थोड़ा सा आर्टिस्ट भी समझे, थोड़ा सा पब्लिशर भी समझे, और एक मिडिल ग्राउंड क्रिएट हो, जो मेरे ख्याल से हो जाएगा थोड़े टाइम में। अभी की बात करें तो अभी ये बहुत ईजी हो गया है, क्योंकि प्रिंटिंग कॉस्ट ईजी है,
प्रिंटिंग ईजी है, डिजाइनिंग पहले जैसा डिफिकल्ट नहीं रह गया, घर पे बैठ के आप अपना ग्राफिक नॉवल क्रिएट कर सकते हो. Correct. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल 200 300 पेज के ग्राफिक नॉवल्स घर पे बैठ के कर रहे हैं Hmm. while they are doing their jobs. And then finding a publisher, or if you don't want a publisher, you can self publish it, self distribute it. There are enough events, there are enough distributors who can come on board and can help you out, but the margins are very different. Like sometimes distributors take away as much as 60% of the MRP. Okay. तो you need to figure out कि कितना बेचोगे तो ये चीज़ बनेगी. Then there are people who feel कि they are not creating a comics, they are creating an IP. तो उनको पता है कि comics में लॉस है, but exploitation में तो पैसे हैं, पैसे हैं. राइट? तो वो एक तरीका है जहाँ आपको पता है कि ये चीज़ ऐसे कर लूँगा मैं, इसके बाद एक्सप्लोइटेशन में तो मैं इसके इतने पैसे बना लूँगा. तो दैट इज़ वन वे ऑफ डूइंग थिंग्स. देन देयर आर प्लेसेस वेयर people also know studios, people know animation studios, they already know कि इसको मैं कर लूँगा. तो ये rather than pitching a document, pitching a book is much easier. Pitching a graphic novel is much easier because then proof is in the pudding and you're like just putting that pudding on the table. ना कि ये है, ये बन गया है, इसकी 10,000 कॉपीज मैंने बेच दी हैं. कोई भी उस चीज़ को सीरियसली लेगा एज कम्पेयर टू अ स्क्रीन प्ले जो किसी ने देखा ही नहीं है, जिसको किसी को पता ही नहीं इसका होने क्या वाला है. एटलीस्ट जब मैं मेरी बुक रखता हूँ सामने, मैं बोलता हूँ इसके 10,000 कॉपीज बिक गई हैं. Correct. So it gives me a very different kind of weightage. Second thing, it also it adds a lot more value to your persona as a creator, where they know you are in it for a longer run. They're not here as a service provider. No disrespect to the service providers. Are 90% of the industry is running based on is actually service industry, to be very honest. When you compare a service provider versus an IP holder, Okay. an IP holder always gets a little more weightage in a meeting, depending on which meeting you're going for. आप सर्विस प्रोवाइडिंग की मीटिंग में जा रहे हो तो वहाँ IP क्रिएटर को वेटेज उतना नहीं मिलेगा. बट मेरा ये मानना है कि ओरिजिनल IPs एंड ओरिजिनल क्रिएटर्स always have an edge over a studio that is into just service providing, basically. That's my understanding, but I might be wrong. So comic के लिए service providing क्या है? मतलब people who are artists. हैं, हाँ. writers भी हैं service providers. Sometimes we have to hire writers. We give them our ideas. जैसे कि ये आइडिया है, तू कर ले. फिर मैं साथ में आके इसमें डायलॉग्स कर लूँगा या साथ में आके इसको ठीक कर लूँगा एज एन एडिटर. वो भी होता है. Okay. एज अ कॉमिक स्टूडियो हम बाहर का काम भी लेते हैं. वो भी होता है. We did a lot of projects for a lot of studios, but we were creative partners. We always said कि मतलब कोई एक चीज़ तो हमारी होनी चाहिए. विजुअल लैंग्वेज हम क्रैक कर रहे हैं या इसको इस तरीके से इस स्टोरी को सुनाया जा सकता है. कॉमिक्स बीइंग अ वेरी इंटीमेट अफेयर कि मुश्किल से 10 लोग साथ में बैठ के काम कर रहे होंगे. इट बिकम्स वेरी इजी टू एक्सप्रेस, एक्सप्लेन एंड execute. Correct. So that way comics give you far bigger and far better freedom as compared to other places where you need a team of 200 people or 50 people working, and you have more mouths to feed. So sometimes despite having a dream of telling your own stories, you have harsher realities. यार वो 50 लोगों की सैलरी देनी है 30 तारीख को, तो मुझे बाहर का काम लेना पड़ेगा. स्लोली क्या होता है कि वो बाहर का काम मेरा मेन काम बन जाता है और मेरा ड्रीम जो है वो साइडलाइन हो जाता है. वो 8 साल तक. हाँ, 8 साल 10 साल तक पड़ा रह जाता है. So how big is the comic market in India? International comic market is pretty big. Pretty big. But that has been always big, right? No, it has become bigger. Okay. Like manga has become even bigger than your US comic market. US comic. Yeah. The highest selling comic book title in India and all over the world is Dogman. Dogman. Okay. Dogman का अकेला वॉल्यूम सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन तीनों को मिला दोगे तो बिकता है. तो Dogman, if you go to any crossword or any bookstore, you'll see Dogman is never on discount. Okay. तो क्यों ऐसा? मतलब इतना डिमांड है? That is where we are failing as creators. We are not targeting young readers. We are not targeting readers from 4 to 7. Okay. हमारा जो टारगेट ऑडियंस है ना, चाहे वो इंडियन एनिमेशन है चाहे इंडियन कॉमिक्स है, इट्स 7+. For comics. फॉर एनीथिंग, फॉर कॉमिक्स, फॉर एनिमेशन. Okay. ठीक है. जबकि जो बड़ा रीडर ग्रुप है वो है 4 to 7. Okay. वो इतना बड़ा रीडर ग्रुप है. पहले तो वो रीडर ग्रुप बहुत बड़ा है क्योंकि वो चंक ऑफ किड्स आर ऑलवेज देयर इन द वर्ल्ड. वो रहेगा ही रहेगा. दूसरा है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे स्क्रीन टाइम कम रखें. तीसरा है कि इनके लिए ना आप माइंड नहीं करते हो 100 रुपये ज़्यादा देना. ठीक है, आपका टिकटिंग प्राइस थोड़ा ऊपर होगा ना तो आप माइंड नहीं करोगे. चौथी चीज़ इनके लिए कंटेंट भी है. Okay. वो ABC का बुक्स है, अल्फाबेट्स वाला. रेगुलर चालू बुक्स है. वो फेरी टेल का बुक्स है जो आपने भी एज अ किड पढ़ा है. अब बोलते हो नया क्या है. एंड देन देयर कम्स कैप्टन अंडर पैंट्स, देयर कम्स डॉगमैन, कैट बॉय, और ये चलते हैं यार. ये क्या बिकते हैं. इनके नंबर्स जस्ट गूगल कर लेना. हाँ, इनसेन नंबर्स हैं. Any such company in India who is doing it? People are trying to do that. Even at Indus we are trying to do that. Indus Kids करके हमने शुरू किया. लेकिन हमने उसको दूसरे तरीके से लिया. We said we will be doing these books in Hindi. Okay. क्योंकि यंग रीडर्स हिंदी पढ़ ही नहीं रहे. दूसरा प्रॉब्लम हमने क्या देखा कि when we say my village
और विलेज लाइफ, ऐसा बुक्स आप देखने जाते हो, तो ये सब यूरोपियन बुक्स है। वो जैक अपना ट्रैक्टर में जाता है डेफोडिल्स के बीच से हैंडपम्प कहाँ है यार, गोबर थापती हुई औरत कहाँ है, बरगद के पेड़ के चारों तरफ क्या बोलते हैं मोली बांधती हुई औरतें कहाँ हैं, वो मेरा विलेज है। तालाब में नहाते हुए बच्चे मेरा विलेज है, गिल्ली डंडा खेलते हुए बच्चे मेरा विलेज है। तो वी क्रिएटेड दिस बुक कॉल्ड मेरा गाँव। और यू वोंट बिलीव एट अ कॉमिक कॉन आई मेट अ यंग किड यार, 4-5 साल का होगा, उसने हैंडपम्प देखा, बोला मैंने ये देखा है, मैंने ये देखा है। ही डिडंट नो कि उसको हैंडपम्प बोलते हैं। हमें ये लगा कि इस चीज़ की ज़रूरत है, ये करते हैं। वी ऑल्सो क्रिएटेड अ कैरेक्टर कॉल्ड डुबकी। तो डुबकी का क्या है कि सिर है वो ना एक्वेरियम है तो उसमें पानी है, तो सारे बच्चे उसका मजाक बनाते हैं कि अरे तू तो डिफरेंट है। एंड देन ही कम्स बैक टू हिज मदर, ऐसे इसकी सब लोग मेरा मजाक बनाते हैं। एंड हिज मदर गिव्स हिम अ मंत्र कि सेम है किसी तरीके से, और अगर तुम बड़े हो और कोई छोटा है तो भी तुम सेम हो, अगर कोई मोटा है कोई पतला है तो भी तुम सेम हो। बेसिकली एक्सेप्टिंग योर डिफरेंसेस एंड कमिंग टुगेदर, इंक्लूसिविटी। करेक्ट। So that was a book that sells like hotcake यार। मतलब the moment we tell people कि ये किताब है, तो they feel कि यार ये वैल्यू बच्चों में जानी चाहिए। Correct. Having said that, डॉगमैन कोई वैल्यू के चक्कर में पड़ता नहीं है। डॉगमैन मस्त किताब है। कोई गणेश का जो श्री गणेश का ओरिजिन है वो डॉगमैन का स्टोरी है। इसका मुंडी काट दिया था, डॉग का मुंडी काट दिया था, डॉग का मुंडी इसको लगा दिया, ये डॉगमैन बन गया। इंडिया में कोई करता और गणेश कोई बाहर का गॉड रहता तो सब लोग बोलते कॉपी किया है, कॉपी किया, ठीक है, लेकिन वहाँ कोई बोलता नहीं है। एंड इट्स अ फन बुक यार, बहुत मजेदार किताब है, मैं पढ़ता हूँ। ओके। हाँ, बच्चों को तो छोड़ दो, मैं पढ़ता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है उसको पढ़ के। तो आई फील कि वो जो स्पेस है ना, हमारे टीवी चैनल्स की वजह से हमारे एनिमेशन स्टूडियोज ने उस स्पेस के बारे में सोचना छोड़ दिया। करेक्ट। व्हेनेवर आई स्पीक विद, इवन व्हेन आई वाज वर्किंग विद अ चैनल, व्हेनेवर आई सेड कि यार प्री प्राइमरी के लिए हमारे पास क्या है, तो है ना हमारे पास मिकी माउस क्लब हाउस है, ये है वो है, वी डोंट हैव एनीथिंग इंडियन देयर, डोरा द एक्सप्लोरर है। बट आपको ये पता है क्या कि ऑडियंस कितनी बड़ी है, क्यों जाके कोको मेलन देख रही है, क्यों जाके ब्लूई देख रही है, पेपा पिग देख रही है। दीज आर बिग आईपीस यार, दीज आर लाइक $1 बिलियन आईपीस। पता है क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वो जो जगह है ना, उस जगह में कंपटीशन ही नहीं है। बच्चे ने एक बार टेलीटबीज देख लिया ना तो टेलीटबीज का दीवाना हो गया, खत्म, गेम ओवर, क्योंकि उनको तो सेम चीज़ चाहिए रिपीट में। तो वो टारगेट ऑडियंस को हमने अभी तक सोचा ही नहीं अपने ऑडियंस के बारे में। रिसेंटली समवन सेड कि अ वेरी नाइस थिंग कि यू नो politicians don't look at kids seriously because they are not their vote bank. ओके। True. That's true, right? इसलिए बच्चों के चैनल्स पे किसी को इंटरेस्ट नहीं है। हमारे पास हमने उस चीज़ को सीरियसली लिया ही नहीं है अभी तक। तो आई फील कि देयर आर मेनी सच गैप्स विद इन आर इंडस्ट्री एंड आर ऑडियंस, एंड इंडिया इज अ नेशन ऑफ 1.4 बिलियन पीपल ना। ट्रू। 140 करोड़ लोग हैं हम लोग, 150 हो गए होंगे शायद बात करते करते। तो 150 करोड़ लोग हैं, इसमें अगर 20 करोड़ भी बच्चे हैं ना तो बहुत बड़ा मार्केट है यार। वो यूरोप के कई नेशन को मिला दोगे तो 20 नहीं होते वो। करेक्ट। तो इतना बड़ा मार्केट है कि सेल्फ सफिशिएंट मार्केट है ये। तो अगर मुझे मेरी वॉइस मिलती है तो क्यों ना करूँ मैं ये। लेकिन हम क्या करेंगे, इजी वे आउट है ना, जॉनी जॉनी यस पापा का एनिमेशन बनाएंगे, यूट्यूब पर डालेंगे, 10 जॉनी जॉनी यस पापा बच्चा देख रहा है, उसके बीच में मेरा भी एक देख लेगा, मेरे को 1 मिलियन हिट्स हो जाएगा, उसका जो $300-400 आने वो आ जाएंगे यूट्यूब से। मैंने क्वालिटी काम करना ही नहीं है, जो कुछ अलग सोचना ही नहीं है, जो जमा जमाया मामला है वो जमा जमाया मामले में काम कर लेंगे। इस मामले में तो एक्चुअली तारक मेहता का उल्टा चश्मा इज डूइंग मच बेटर वर्क। एब्सोल्युटली। हाँ, दे आर डूइंग लाइक मल्टीपल लैंग्वेजेस। तो लोरी अलग अलग लैंग्वेजेस में, अलग अलग लैंग्वेजेस के बाल गीत हैं उनके चैनल पे। तो एटलीस्ट बच्चों को अलग अलग लैंग्वेज देखने को मिल रही है जो बच्चे यूट्यूब पे हैं, और वो बहुत बड़ा मार्केट है यार। लेकिन हम नर्सरी राइम्स से आगे नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि आगे कुछ करना है। नर्सरी राइम्स आर नॉट आईपी बाय द वे, पब्लिक डोमेन में यार। जॉनी जॉनी यस पापा आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है यूएस में, ही यूज्ड टू ड्रॉ फैंटम टेरीबिटी, तो उसने डाला व्हाट इज दिस जॉनी जॉनी यस पापा थिंग माय किड इज हुक्ड ऑन टू। तो यूएस में नहीं पता था कि ऐसा कोई नर्सरी राइम है, उसका बच्चा देख रहा है इंडियन चैनल, तो जा तो रहा है सामान बाहर लेकिन जो जाना चाहिए वो नहीं जा रहा है। तो हमारा वो भी जॉनी जा रहा है, मतलब वो भी जॉनी जॉनी यस पापा जा रहा है, वो भी बेबी शार्क डूडू डूडू के ट्यून में है। उसका भी ट्यून भी हमने ओरिजिनली बनाया। तो ओरिजिनल करोगे तो तुम समझो ना तुम कहाँ पहुंच सकते हो। लाइक माइटी लिटिल भीम was one of the highest watched show on Netflix in that pre-primary group. And smartly they did it is there was no dialogues. तो कोई भी country का कोई भी language सब लोग देख लो। क्यों नहीं देखेगा यार? So any newcomer who wants to start his own comic book, so what would you advise? Right from kid to anyone who is now maybe struggling into an artist stuck into a corporate world and would want to like मुझे भी एक comic करना है या whatever. So what would be the process and advice? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इंटरनेट हैज मेड थिंग्स वेरी डेमोक्रेटिक। सो अगर आप स्टिक फिगर भी ड्रॉ करते हो और आपके आइडियाज बहुत अच्छे हैं, तो अभी आपको वैसे मरने की जरूरत नहीं। जैसा मैं बोल रहा था कि यार मेरा वो आर्ट देखा, इसका आर्ट देखा, मेरी जान सूख गई, मैंने फिर अपना आर्ट ठीक किया। अभी तो हर तरीके के आर्ट के लिए मार्केट है। एज लॉन्ग एज द आइडिया इज गुड, यू हैव मार्केट फॉर इट। कुछ नहीं तो इंस्टाग्राम पे 4 पैनल डल जाते हैं, है ना।
कितने सारे आईपीज हैं जो हमने इंस्टाग्राम से ब्लूम होते हुए देखी हैं Who is it? कि हाँ बहुत सारी आईपीज हैं यार। अलिसिया सूजा यार इंस्टाग्राम और इंटरनेट से ही आई है, हाँ ठीक है, इतना बड़ा मार्केट है वो। चुंबक को देख लो ना, वो इन्हीं जगहों से बड़ा हुआ है। देयर आर सो मेनी क्रिएटर्स ऑन इंस्टा एक एंड फेस मुझे याद है, गंजी चुड़ैल, गंजी चुड़ैल, क्रिंज। क्रिंज, हाँ तो यार मतलब मैं कह रहा हूँ कि खराब होना तो फिर इतने गंदे हो कि वायरल हो जाओ। करेक्ट, मतलब इनफ इज नॉट गुड, या तो गुड इनफ रहे या बैड इनफ Bad रहे। enough. हाँ, इनफ इज नॉट गुड, इनफ बहुत लोग कर रहे हैं। क्यों? तो डेमोक्रेटाइज तो हो गया है यार मार्केट, क्योंकि अब आपको एक्सपोजर के लिए कुछ बहुत ज़्यादा फाइट नहीं मारनी है। सबके पास सोशल मीडिया लगा हुआ है, तो सोशल मीडिया कैन बी अ बिग बिग थिंग वेयर platform, यू yeah. कैन डिस्ट्रीब्यूट योर वर्क। आई एम नॉट सेइंग कि खराब ड्राइंग ही करते रहो, Correct. ड्राइंग अच्छी करनी जरूरी है। अगर अच्छी ड्राइंग करोगे तो ज़्यादा ट्रैक्शन मिलेगा, अच्छे आइडियाज होंगे तो और ज़्यादा ट्रैक्शन मिलेगा। बट कई बार क्या होता है, किसी का आइडियाज बहुत अच्छे हैं, ड्राइंग्स बहुत खराब है, Correct. किसी के आइडियाज उतने कुछ खास नहीं है और ड्राइंग्स बहुत अच्छी हैं, अच्छा है. तो वो भी चल जाएगा। क्योंकि एक चीज में तो आपको अच्छा होना पड़ेगा, एक जगह तो एज चाहिए होगी ना। तलवार में दो साइड है, दोनों साइड एज नहीं है, चलेगा, एक साइड तो रखो, नहीं एक तो side ब्लंट हो रखो. जाएगा, कुछ कट नहीं होगा, कट थ्रू नहीं होगा। तो आई फील कि वन ऑफ द थिंग्स यू शुड वर्क ऑन, एटलीस्ट वन थिंग हैज टू बी बेटर देन वॉट एवर इज देयर इन द मार्केट, एंड सेकंड थिंग यू कैन कीप इम्प्रूविंग ऑन। तो यू विल सी एनी ऑफ योर फेवरेट क्रिएटर्स ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स, यू विल सी कि वो लोग एक चीज़ में तो अच्छे हैं, और यू विल ऑल्सो सी देम इवॉल्विंग ओवर अ पीरियड ऑफ whatever XYZ years they've been there. Yeah. So I honestly feel कि एक वो चीज़ होनी चाहिए कि एक चीज़ में आप अच्छे हो, कम से कम एक चीज़ में अच्छे हो। दोनों में अच्छे हैं तो फिर तो लॉटरी है, लाइक गार्बेज बिन। Correct. It's run by a very good friend of mine, Faisal, who's almost like a brother to me. And we have 1 million followers on Facebook. It was the fastest growing Facebook page when we started it. Only on Facebook. Only on It Facebook. doesn't have a physical. नहीं, अभी अभी बाद में- physical अब तो physical किताबें बाद में आ आ गई। गए, हाँ. But he started with digital. डिजिटल, या और मस्ती में शुरू किया था, और वो विद इन 2 years 1 million फॉलोअर्स हुए थे वहाँ पे। Wow. दूसरी चीज़ मुझे ये लगती है कि देयर इज अ बैंक्रप्सी ऑफ आइडियाज। रैंडम कुछ आप बोलोगे कि ये मैं कुछ डार्क करूंगा, ये करूंगा, ये बहुत होता है यंग जब आप होते हो तो, कि मैंने कुछ डार्क कर लेना है लाइफ में। डार्क करने से एज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, उससे कोई एज वेज नहीं आती है, ये उल्टा है. ये उल्टा है। हाँ. थिंक ऑफ सबवर्जन्स, थिंक ऑफ दीज थिंग्स बिफोर यू गो, लाइक मैं इसको बहुत डार्क बना दूंगा जो होता है ना, एंड आई मीट अ लॉट ऑफ देम, तो दैट्स व्हाई आई एम स्पीकिंग अबाउट इट। के थिंक ऑफ इट लाइक मेकिंग चॉकलेट केक। पहले तो केक बनाना पड़ेगा, फिर उसमें चॉकलेट लगेगी। हाँ. तुझे तू डार्क करना है ना, वो पहले समझ तो सही तुझे कहना क्या है, कहना वो कहना क्या है, उसके ऊपर डार्क हो जाएंगी चीज़ें, डैंक हो जाएंगी वो चीज़ें। हाँ. बट डार्क और डैंक होने के लिए कहानी को ही तुमने नाली में डाल दिया तो फिर बहुत मुश्किल वाला काम है। You had a journey, but and it was a tough journey. अभी क्या है कि सबको टफ जर्नी एज इन पता हाँ, नहीं था कहाँ सीखे, हाँ, गूगल नहीं था हाँ, हमारे Google पास. नहीं था हमारे पास। ठीक है, तो दैट वाज टफ. अब तो गूगल तो क्या, अभी एआई आ गया. मतलब मुझे आई डोंट नो, यू टेल मी इफ आई नीड टू बी क्रिएटिव पर्सन टू मेक अ कॉमिक बुक, और आई कैन जस्ट बी डिपेंडेंट ऑन एआई एंड मेक अ कॉमिक बुक. सो आई एम नॉट एंटी AI फर्स्ट ऑफ ऑल। जो भी बोलता है एंटी AI है, आई ऑलवेज फील कि ये डोडो है, और इसको थोड़े टाइम के बाद समझ में, या तो समझ में आएगा या विलुप्त हो जाएगा। करेक्ट. ठीक है, दो ही तरीके होते हैं, या तो इवॉल्व होते हो या खत्म हो जाते हो। तो इवॉल्व और एक्सटिंक्ट, तो AI सच्चाई है, इनएविटेबल है, जितनी जल्दी हम ये मान लें उतना अच्छा है। लेकिन जैसे फोटोशॉप आने से आर्टिस्ट खत्म नहीं हुए, करेक्ट. वैसे AI आने से क्रिएटर्स खत्म नहीं होंगे। ये है कि फोटोशॉप आने के बाद बहुत सारे बे टैलेंटेड लोग या कम टैलेंटेड लोग टैलेंटेड लोगों के बराबर में आके खड़े हो गए। AI आने से ऐसा भी होगा कि बहुत सारे लोग जो कि 50% गुड इनफ हैं, वो आके बेटर लोगों के बगल में खड़े हो जाएंगे, जो कि गलत नहीं है, मेरे हिसाब से ये होना ही चाहिए। उसी से बेटर लोगों को और बेटर करने की प्रेरणा मिलेगी। करेक्ट. मैं खुद AI यूज़ करता हूँ कई बार रेफरेंस के लिए, कुछ चीज़ों के लिए, कुछ स्पेसिफिक पर्टिकुलर डिज़ाइन मुझे एग्जैक्टली वैसा चाहिए, तो मुझे ब्रीफ देने में आसानी हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बुरी चीज़ है AI से। लेकिन अगर आप बोलो कि मैंने एक IP क्रिएट करना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि AI की जो क्रिएटेड IP होगी, इट विल ऑलवेज बी बेस्ड ऑन समथिंग दैट प्री एग्जिस्ट्स। करेक्ट. इज अ रेफरेंस पॉइंट टू दैट। सो अगर आप वैसा काम करते आए हो लाइफ में जो प्री एग्जिस्टिंग है, जो कि रेफरेंस बेस्ड है, जो कि इनफ है, यू आर रिप्लेसेबल। देयर इज नो, उसमें कोई शक की बात ही नहीं है, आप रिप्लेस हो जाओगे। मेरा ये कहना है कि कभी भी कोई एक नई टेक्नोलॉजी आती है, उससे वर्कफोर्स को कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, उस वर्कफोर्स को पड़ता है जो कि ऑटो पायलट पे चल रही है। तो अगर आप ऑटो पायलट वाले राइटर हो, क्रिएटर हो, जो ब्रीफ पे लिखता है, ब्रीफ पे काम करता है, और वो एग्जैक्टली ब्रीफ पे ही रहता है, ब्रीफ से एडिशनल कुछ नहीं कर पाता है, तो फिर तो दिक्कत है। फिर तो, क्योंकि ब्रीफ पे काम करने के लिए मेरे पास बहुत सारी टूल्स हैं, राइट। तुम वो क्या मैजिक लेके आओगे? तुम्हारा जो अंदर का जो ग्रीन ऑफ ट्रुथ है, जो तुम्हारा मैजिक है, वो क्या है? अगर वो आप नहीं ला रहे हो अपने काम के अंदर में, तब तो आप रिप्लेसेबल हो। लेकिन अगर वो आपके भीतर है, तो AI is a tool that is going to give you an edge. Then that can be a prompt, like, that can be a prompt. So also I feel because of AI, and
द एक्सपेंशन ऑफ इट 90% और 80% ऑफ द थिंग्स विल स्टार्ट लुकिंग द सेम. सारी चीज़ें एक जैसी दिखने लग गई हैं. बहुत सारी वीडियोस हम लोग देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, सब एक जैसा दिख देख रहा के पता चल जाता है कि है ना. ये देख के पता चल जाता है AI है. लिखा हुआ भी देख के पता. जो लोग 4 लाइन की ईमेल नहीं लिख रहे थे, वो लोग Of 2-2 पेज की course. मेल्स भेज रहे हैं, राइट. अभी मेरी क्रिसमस के मैसेजेस इतने लंबे लंबे आने लग गए हैं. पहले सिर्फ मेरी क्रिसमस आता था, सिर्फ ठीक मेरी है. हाँ क्रिसमस. हाँ, पहले वो कॉपी पेस्ट करते थे, तो वो सब नहीं हो गया. अब हर आदमी राइटर हो गया है, ठीक है. अगर हर आदमी राइटर हो गया है और हर आदमी आर्टिस्ट बन गया है, तो राइटर और आर्टिस्ट ने क्या करना है कि वो इससे प्रीमियम बन पाए. वो प्रैक्टिस है, वो आपका एक्सपीरियंस है जो आपको एज देगा. एंड आई फील कि एज क्रिएटर्स, अगर इफ यू हैव दैट एज, देन दैट एज गिव्स यू एन एज ओवर AI, एज ओवर ऑल द बेसिक वर्कर्स इन द field, and that is going to make you a premium asset in the market. Correct. So the human touch will become premium, will ask for premium money. जो एकदम से हम लोग हमेशा बात करते हैं एसोसिएशंस वगैरह में कि वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है, बहुत लोग चाहिए, बहुत लोग चाहिए, बहुत लोग चाहिए. वो रिक्वायरमेंट कम होगी, वो 50% हो जाएगी, 40% हो जाएगी. अब बेस्ट ऑफ द बेस्ट के लिए जगह है. करेक्ट. ये ओलंपिक है, हो गया. वो अंडर 19 आपने खेल लिया, स्कूल का मैराथन आपने जीत सब हो लिया, गया. अभी ओलंपिक्स है. True. यहाँ अगर आप पैरों में दम लेके नहीं आओगे तो फिर तो कहीं यहाँ नहीं. आप सर्वाइव नहीं करोगे. So Alok, I'm very impressed with one of your comic books cover page, and the book is called as Stunt. उसके बारे में कुछ जरा बताना, because मैं इतना वो cover page देख के इतना impressed हुआ हूँ. even एक event में जब आपने बताया था, plus मैंने book भी खरीद ली है आपसे. Only for the cover. Only for the cover page. अब तो मैंने पढ़ा नहीं है for sure. नहीं, but I you, will, you yeah. should read it. I think cover तो खैर है ही. We won a award for that cover actually. Comic-Con best cover का award मिला है उसको जिस साल वो book आई थी. The idea was to create a first. I'll speak about the cover because that was always there in my mind. मुझे वही cover चाहिए था, exactly वैसा चाहिए था जैसा वो बना है. बहुत rarely होता है कि you have something in mind and you get 100% of what you wanted. Correct. छिटपुट चीज़ें थी जो हमने साथ में मिलके उसमें और ऐड कर ली थी, जैसे बॉम्बे का पिंक स्काई एंड ऑल दोस थिंग्स एंड सीलिंग एंड स्टफ. बट आई ऑलवेज वांटेड टू हैव दिस कवर. एक्चुअली बहुत इम्पॉसिबल चीज़ है वो कि यू आर डूइंग दैट स्टंट ऑन द बाइक एंड यू आर किसिंग अ गर्ल. Kissing a girl, yeah. हाँ. Willy करते हुए. व्हीली करते हुए और आपके जैकेट में भी आग लगी हुई है. हाँ. तो दैट वाज द आइडिया. ऑलवेज इट वाज ऑलवेज देयर इन माय माइंड कि ये कवर रहना चाहिए, ऐसा कुछ कवर होना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज इम्पॉसिबल है. एंड स्टंट वाज एक्चुअली रिटन लाइक अ फिल्म. Any film that I'm writing, I already know कि इसका पोस्टर क्या दिखेगा, because while working in animation, we had to pitch our stories a couple of times to people. Correct. And I would always pitch a trailer moment. हम्म. कि अरे रोल नंबर 21 में ना इस एपिसोड में कृष्ण 2 शेर के ऊपर से अजय देवगन के जैसे आएगा. हाँ. Like, अरे ये तो बड़ा अच्छा दिखेगा. Then you know कि they are sold on the idea. Now you have to tell them the story. And मैं फिगर आउट कर लूँगा ये ऐसा कैसे होगा. तो वो ट्रेलर मोमेंट या पोस्टर मोमेंट ना is always there in my mind when I'm writing something. When I was 8 year old, I had typhoid and I almost died. हाँ, मैं बहुत महीनों तक हॉस्पिटल में था. मेरे पैर पतले हो गए थे, मैं चलना भूल गया था, मुझे चलना नहीं आता था. मेरे पेरेंट्स ने मुझे वापस चलना सिखाया. उस बीच में माई फादर वॉज ट्राइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस वेंचर विच गॉट डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ माई इलनेस. उसमें क्या हुआ कि ही वांटेड टू डिस्ट्रीब्यूट हिंदुस्तान टाइम्स का बुक्स. उसमें पराग वराग आती थी बहुत. तो उसमें एक पराग का इशू था, विचित्र कथा विशेषांक. मुझे अभी भी याद है, ब्लैक कलर का है, उसके ऊपर वाइट ऐसा डायनासोर सा कुछ बना हुआ है पेपर कट से. उसमें एक आर्टिकल था ऑन स्टंट पीपल. ओके. एंड वो ये किताब थी, उसके कुछ 100 कॉपीज थी हमारे यहाँ, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लाए थे. एंड बिकॉज ऑफ माई इलनेस ही कुडंट डिस्ट्रीब्यूट, तो हमारे घर में उसकी 100 कॉपीज. तो वही किताब थी मेरे पास कुछ 1 साल तक. इट्स फनी नाउ बट माई फादर्स बिजनेस, लाइक पूरा बिजनेस ही खत्म हो गया उस चक्कर में. तो वो किताब मैं यार पूरे दिन पढ़ता था. आई नो दैट बुक बाई पेज नंबर. ठीक है, 1 साल पढ़ी मैंने किताब. मेरे पेरेंट्स मुझे चलने की कोशिश कराते थे, मेरे भाई बहन छोटे छोटे थे, और मैं वो किताब पढ़ता था. उसमें स्टंट पीपल का पूरा ऐसा स्टोरी था 2 पेज का. एंड आई स्टिल हैव 1 कॉपी ऑफ दैट मैगजीन. हाँ, आफ्टर सो मेनी ईयर्स. उसमें स्टंट पीपल की कहानी थी. एंड आई ऑलवेज फेल्ट कि यार इसके बाद इन लोगों की फैमिली का क्या होता होगा. राइट, आई वाज वेरी यंग. तो वो थॉट वहीं जाके अटक जाए, और वो बहुत तकलीफ दे मुझे वो थॉट कि यार क्या होता होगा, ये आदमी ऐसे मर गया था. हाजी करके एक स्टंटमैन था, हाउ ही डाइड उसमें था. रेशमा की कहानी थी, हु डिड हेमा मालिनी स्टंट डबल इन शोले. इनका पैर टूट गया था वो करते समय शोले का स्टंट. सो दैट आइडिया रिमेन इन माई हेड फॉर क्वाइट सम टाइम. एंड व्हेन आई वाज डूइंग चित्रकथा एंड ऑल दोस थिंग्स, देयर वाज अनदर मोटिव दैट आई कुड constantly I was coming across was superheroes never let you know their true identities. They put their life in danger. Yeah. और आपको उनका ट्रू आइडेंटिटी पता नहीं होता है. तो स्टंटमैन आर एक्चुअली सुपर हीरोज. करेक्ट, ऑफ कोर्स. हाँ, यू डोंट नो देयर नेम्स, यू क्लैप फॉर समबडी एल्स, एंड दे एट टाइम्स डाई व्हाइल परफॉर्मिंग दीज स्टंट्स. आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट दिस थिंग एंड आई रियलाइज कि स्टंट पीपल को इंश्योरेंस नहीं मिलता था एक लंबे टाइम तक. अभी शुरू हुआ है बहुत रिसेंटली. तो ये सब चीज़ें मेरे साथ में थी. एंड आई थॉट व्हाट इफ अ स्टंट पर्सन हुज नाउ नो मोर, हिज सन हैज लाइक ही इज फोर्स्ड टू बिकम अ स्टंट पर्सन. ओके. उसकी लाइफ क्या होगी. So I started writing a story based on that. It was a superhero story. So my one-liner idea was कि he'll be like Batman but with no money. No.
राइट, क्योंकि क्या पैसा होगा उसके पास। तो वो पूरा एक साथ जमना शुरू हुआ वो कहानी। एंड आई वाज वर्किंग विद अरुणा, आई वाज प्रोड्यूसिंग एन एनिमेटेड शो फॉर टीवीएफ ओके। दैट माइट कम आउट समडे, वो बन के तो रखा हुआ है। हम्म। तो उस बीच में हमारी आपस में बात शुरू हुई टीवीएफ में कि यार कॉमिक्स, ही टर्न आउट टू बी अ कॉमिक बुक फैन, ही लर्न दैट आई एम मैसिव कॉमिक बुक फैन, एंड मेरी कुछ कॉमिक्स आ रही हैं, सारी चीज़ें हैं। तो इज दैट व्हाई डोंट वी वर्क ऑन आवर ओन थिंग, एक कॉमिक कंपनी जिसमें हम अपनी आईपीज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। एंड दैट इज समथिंग दैट आई ऑलवेज वांटेड टू डू फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। आई वांटेड टू क्रिएट माय ओन आईपीज एंड ओन देम rather than working for somebody else. So this was like a culmination of a lot of these ideas. So और हम लोगों का बड़ा डेमोक्रेटिक प्रोसेस था, जो कि टीवीएफ का भी रहा है, कि अर्नाब विल सिट एंड वी ऑल विल सिट एंड वी ऑल कीप थ्रोइंग स्टोरीज एट ईच अदर एंड देन विल से कि यार ये सही लग रही है, इसको करते हैं। तो बहुत सारी बड़ी कहानियां थी। उसके बीच में ये कहानी कहीं 2012 में लिखी हुई किसी नोटबुक पे रखी थी मैंने, यार एक ऐसी भी कहानी है यार, ये सही है, व्हाई डोंट वी डू दिस साउंड्स इंटरेस्टिंग एंड इसमें बहुत कुछ हो सकता है। आई ऑल्सो फेल्ट कि दिस इज अ स्टोरी दैट आई फील विल वर्क रियली वेल। तो फिर मैंने उसको लिखना शुरू किया। वो एक 2 पेजर हुआ। वी नरेटेड इट टू अ फिल्म मेकर, ही रियली लव्ड इट, ही सेड यार ये तो फिल्म है, ये है, वो है, बट ही वाज बिजी विद समथिंग एल्स। तो वो कहानी मेरे पास थी। थैंकफुली आई गॉट टू वर्क विद सोमन हु इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। 20 साल से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हमने साथ में किए थे, बट दिस वाज लाइक द कल्मिनेशन ऑफ व्हाट वी वांटेड टू डू फॉर ऑलमोस्ट 15 years ऑफ नोइंग ईच अदर। नाइस। नाउ वी नो ईच अदर फॉर 20 years, बट 5 साल पहले की बात है। सो 15 साल से ये था कि दिस शुड बी द बेस्ट ऑफ, मतलब जब भी हमने काम किया अपना बेस्ट ही दिया, बट द बेस्ट ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस, Correct. what we want to say, and with no creative control. So there was no creative control on this book, and it was hardcore masala because we both love Manmohan Desai, we both love Spielberg, we both love Tarantino, Sriram Raghavan. तो हमारे तो होमेज भरे पूरी किताबों में। बहुत मज़ा किया उस किताब को करते समय में, एंड वी फेल्ट कि यार ये वो किताब है जो हमने करनी चाहिए थी। तो वो कथारसिस था हमारे लिए, स्टंट मोर देन एनीथिंग एल्स। एंड I always say, yaar, and now I believe it even more, कि if you're being honest to something that you're creating, the audience is going to love it. Love it, yeah. Thank you so much, Alok. It was lovely conversing with you, knowing about your journey, knowing about the comic books journey in India, especially the comic books market. और बहुत सारे एस्पायरिंग लोगों को भी पता चला कि भी अगर कॉमिक बुक इंडस्ट्री में घुसना है तो क्या करना चाहिए। So this is really aspiring. It was my pleasure, and I honestly feel कि इससे कोई 2 अच्छे आर्टिस्ट भी निकल के आ जाते हैं कॉमिक्स में, आई विल बी मोर देन ग्लैड टू गो थ्रू देयर वर्क। आई होप कि ज़्यादा लोग आएँ, because comics as a career is a demanding career, to be very honest. It's demanding, but also you'll always be in demand. Correct. Because ज़्यादा लोग मिलते नहीं हम लोगों को। मतलब even now if I'm stepping out of the studio and if I find like 2 good comic book artists, I'll hire them then and there. मतलब मैं ये भी वेट नहीं करूँगा कि कल परसों बात करेंगे, कल परसों तो कोई और उनको लेके चला जाएगा। तो जो हम लोगों के एनिमेशन में फाइट है कि प्री प्रोडक्शन के बंदे नहीं मिलते हैं, कॉमिक्स इज ऑल अबाउट those guys who are always in high demand. So I honestly feel कि if this inspires even 10 people to take up comic as a career, it's going to help us a lot in making this medium work in India and reach where we have been dreaming about to reach. Perfect. So all the comic book fans and aspiring artists, please comment whatever your feedback is, and if you want to know more or learn more from Alok, please feel free to comment, and then we'll be happy to do one more long episode with Alok for you guys. All right. Thanks, Samit.